Okay, so I'll just confess that I'm slightly scared also and slightly excited. ये दोनों मिक्स फीलिंग है क्योंकि धुरंधर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके सामने हमको प्रेजेंटेशन करना है, तो ये मिक्स फीलिंग थोड़ा सा है, बट आई टेक दैट चैलेंज and it will be an honor. So whatever little bit journey I did after leaving my navy and then working here and doing audits and seeing those buildings, तो सर फौज में 15.5 साल नौकरी करने के बाद में ये बात मेरा तय हो गया है और सिविल में रहने के बाद कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो और उसको आप गोली मार सकते हो, बट यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है हमारा इस देश के अंदर, और वो अपना ही भाई, कभी अपना रिलेटिव, अपना ही कलीग, और उसको आप गोली भी नहीं मार सकते। सो बिगेस्ट एनिमी इज नॉट अक्रॉस द बॉर्डर, इट इज इनसाइड द बॉर्डर. एंड व्हाट आर द रियल चैलेंजेस? कैन वी रन दिस प्रेजेंटेशन? राइट. सो today's topic is residential fire safety challenges in residential buildings, and we are going to see the crux of it. I'm going to slightly run it more faster. So इसमें 3 challenges. I have divided this whole part into 3 groups. So one is the life safety challenges, what we have, where any mistakes the life will be at stake. The second is the firefighting challenges, like Parab Sahab has been telling ki what are the difficulties they have been facing. So that will be the second part, and finally the evacuation challenges. While evacuating, what are the things, the challenges what we face, and wherever the possible solutions also. So we are going to run through that. First thing is, when in doubt, get out. Now that is the message what we have been trying to give wherever we have this training, so people understand this one simple word. And again, ये है स्लोगन जो है सर, वो इंडियन आर्मी सोल्जर और फायर ब्रिगेड के लिए भी सेम हो सकता है, बिकॉज माई फादर वॉज इन फायर ब्रिगेड व्हेन ही वॉज देयर, एंड एज ए चाइल्ड इज व्हाट आई लर्न हिम. जो फायर क्रॉलिंग जो है खेलते खेलते हमको उन्होंने सिखाया दिया था. So I think this is the aptitude with Mumbai Fire Brigade fight. So it says, if you see me fighting with a tiger, pray for the tiger. So that's the attitude Mumbai Fire Brigade, and what we have seen, I've seen my father and other people doing. So hats off to them, sir. So like I said, so these are the 3, I've divided this whole thing into 3 parts. So one is your life safety challenges. Any mistake, life will be at stake. The firefighting challenges, where as you come from the fire brigade, what are the difficulties we face, internal road, double parking, all these issues we have tried to address, major thing. And the final is the evac challenges. See, we have bedridden people, माँ बाप दोनों bedridden है, how do you take them? Refuge areas are locked, terraces are locked, what is to be done? So we are going to answer those also. इस चीज का आंसर ऋग्वेदा में 5,000 साल पहले दिया गया था, and ऋग्वेदा says very clearly, it says knowledge is your real protection. इक्विपमेंट में वर्क, इक्विपमेंट में फेल, बट आपका नॉलेज अगर होगा तो इक्विपमेंट आप बना सकते हो. तो टुडे वी ऑल लिव इन हाई राइज बिल्डिंग विद अपार्टमेंट्स. सो ये अपार्टमेंट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज केप्ट टू कीप यू अपार्ट, ये है इसका एक्चुअल मीनिंग. सो दैट्स व्हाई वी से इट ऑल अपार्टमेंट्स, बट वी ऑल नो इट, टू सर्वाइव वी हैव टू ऑल कम टुगेदर. हमको इकट्ठा होना पड़ेगा. अपार्टमेंट में यहाँ पर बाजू वाला कोई मर जाता है, 3 days के बाद में स्मेल आता है, वी नो समबडी हैज डाइड. But survival is a team game, it's not individual game. Right, so this is the Indian way to handle all the emergencies. तो साल में एक बार सत्यनारायण का पूजा डाल दो और हर शनिवार को गाड़ी के लगा तो अपना काम बंद और भगवान का काम चालू. अगर ये सब होता तो फिर मुंबई फायर ब्रिगेड और all those services were not needed, but this is how we try to do it. We'll try to find out then what is the way ahead. So like we said in fire, ये जो सबसे बड़ा जो भी कोई दुश्मन होता है, अगर हमसे लड़ना है तो सबसे पहले उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए. सो वी नीड टू नो द परफेक्ट नॉलेज, द डिटेल नॉलेज अबाउट दिस. वी हैव टू नो, बिकॉज इफ यू सी दिस एनिमी कॉल्ड फायर, तो इसका स्पीड क्या है? सो फायर ऑन एन एवरेज मल्टीप्लाइज बाय 50 times every 8 minutes and 4 times every 4 seconds. तो ये उसका स्पीड है. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर ऑक्यूपेंट्स एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर अदर पीपल? सो दिस इज द होल डेंजर. So these are the list which I have made. So list is very exhaustive, but we are not going to go everywhere. So one, life safety challenges. Any mistake and life will be at stake. So one is your terrace and refuge areas door kept locked. Openable windows are there, but they are all. So ideally we have to provide openable windows at terrace level, so the smoke which goes on terrace level, at least through those windows it can go out. So मुझे बताइए कि दरवाजे जो बंद है, जिसको ताला लगा हुआ है, जिसका चाबी नीचे सिक्योरिटी के पास है, so you need a hammer. Either ताला खोलना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा. So can anybody tell me here where do you get a hammer? People have reached to terrace, but the terrace door is locked.
एंड यू नीड अ की जो आपके पास में नहीं है. सेकेंड, यू नीड अ हैमर. इधर ताला तोड़ना पड़ेगा या खुलना पड़ेगा. सो इन अ हाई राइज बिल्डिंग वेयर कैन यू प्रोबब्ली फाइंड अ हैमर? Right. So one of the societies where I was little bit zapped and I saw that answer was in gym. So if in gym they have this all sledgehammer, they have बड़ा hammer होता है sledgehammer. और आजकल high rise building में gym भी आपका top level पे होता है. So if you don't find anywhere, you will find it there. So in gym you will find it. So window grills today have all become dead trap. So they have the openable type, but we all just put it left and right. Unwanted combustible materials all kept inside. So इनका renovation जिसका भी हो रहा है. So society is the major danger is always from the renovation. So यहाँ पर देखा हो साउथ बॉम्बे में लोगों का रिनोवेशन 8-8, 9-9 महीना चलता रहता है. तो हमने बोला भाई साहब आपको अपना घर को ताजमहल बनाना है, पक्का बनाओ, लेकिन हम लोग का मकबरा मत बनाओ. By keeping all this material in the staircase and the lobbies. And the way out for this has been given by Sandeep Saab, and that sentence can only come from person like him. तो सर ने उसका एक बड़ा आंसर दिया हुआ है. तो ये जो मटेरियल वगैरह सब रखते हैं इसके लिए क्या करना है, व्हाट इज द वे आउट. सो उन्होंने कहा एक चीज, सो दैट एटीट्यूड के साथ काम करना. दैट वर्ड इज दे ट्रीट your staircases how you treat your mother, and I have slightly added into that. So treat your refuge areas how you treat your father, and treat your safety equipments, firefighting equipments like your children. इससे ज़्यादा आप बता नहीं सकते. यही इज्जत के साथ इनको इज्जत देना पड़ेगा, otherwise at 42nd floor you are all mercy of the God. Pets. Now can anybody tell me how the pets are going to life threatening? मैंने लाइफ सेफ्टी में लिखा पेट्स. एनीबडी हियर, एनी आइडिया ये पेट्स कैसे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? नहीं. ओके. सो इवन आई वाज सरप्राइज्ड इन वन ऑफ द बिल्डिंग्स वेयर वी वर डूइंग मॉक ड्रिल, एंड वेयर जब नीचे लोग आए तो वहां पर दो ग्रुप में मारा मारी हो रहा था. इट वाज लिटरली फाइटिंग हो रहा था. आई सेड व्हाट द हेल, क्या हो रहा है? तो बाद में पता लगा कि एक भाई साहब 4 कुत्तों को लेके ही वाज इवैक्यूएटिंग 4 dogs, and with the sound of the hooter all the dogs got irritated. क्योंकि कुत्ते को जब आवाज जो सुनाई देगा he gets irritated, और कुत्ता जब इरिटेट होगा तो क्या करेगा? He is going to bite. So उस आदमी जो 4 कुत्तों को लेके इवैक्यूएट कर रहा था, बाजू वाले बच्चे को काट दिया था, और बच्चे वाले का बाप और कुत्ते दोनों के बीच में वहां पर. So literally, so pets and the dog is going to get irritated. किसी ने काटे तो ओनर को ही काट लेगा. So what is the answer here? Anybody? कुत्ता काटना नहीं चाहिए, उसको भी इवैक्यूएट करके जाना है. और नीचे झगड़ा किस बात का हो रहा था पता है? वो बोल रहा है मेरे कुत्ते को तुम कुत्ता कैसे बोला? ही इज लाइक माय चाइल्ड. बराबर, तेरे चाइल्ड ने मेरे चाइल्ड को काटने वाला था. सो द फाइटिंग देयर इन हाई राइज इज ऑल डिफरेंट ऑल टुगेदर. यू हैव टू पुट दैट मजल. द आंसर टू दिस, यू हैव टू पुट मजल. और कुत्ते को ऐसे मजल डालने जाओ तो काटने को आएगा, तो यू हैव टू उनको आदत डालना पड़ता है. बट द आंसर टू दिस मजल अगेन, पीएस स्पीकर्स they have to be all provided inside the staircase. लोग जब 30 माला से उतर रहे हो, आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, लेकिन अनाउंसमेंट तो लॉबी में हो रहा है. People who are there in the staircase, they should know real time, because by the time they get down in the staircase, things have changed already. जो धुआं staircase नहीं था, suddenly धुआं घुस गया. But हम लोग बोलते हैं मत उतरो, but the people doesn't know. Staircases के अंदर में आपका होना चाहिए. Staircases are not numbered. Again, one building we had a property manager shouting, "Do not use staircase number 1." I repeat, do not use staircase number 1. लेकिन पब्लिक सब उसी से उतर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है. There is no numbering done. Very small thing, but very important part. Again, refrigerator location not provided inside the staircase. People don't know where is the refrigerator in the building. So इसका साइन आपने अगर दरवाजे के ऊपर लिखा है तो people don't even know कि मेरे बिल्डिंग में 9th floor is a refrigerator. So the location of refrigerator should be mentioned inside the staircase. When people are evacuating, वहाँ पर उनको पता चलना चाहिए where is the nearest refrigerator, because that is where he is evacuating, inside the staircase. Very small thing but very important. Escape chutes, magnetic lock. अभी ये बड़ा अच्छा चीज है. Last Sunday I was there in a building where we are doing this mock drill, and they have been given this excellent thing called escape chutes. लेकिन जब वहाँ पर हम लोग गए और वो फैसिलिटी इनको बोला इसको खोल के दिखाओ लोगों को कैसे यूज करना है, तो भाई साहब का चाबी वहाँ पर 15 मिनट खुल रहा ही नहीं. देन चाबी खुलने लग गया तो मैग्नेटिक लॉक वहाँ पर था वो बंद हो गया. Now such an excellent thing, but for the 15 minutes they could not open it. फिर नीचे जाके सप्लाई बंद करो तभी जाके वो एस्केप शूट खोला. खोलने के बाद में दूसरा स्टोरी पूरा गंदा पड़ा हुआ है, उसमें कोई घुसने के लिए रेडी नहीं है, पूरा स्मेल आ रहा है. Such an amazing thing, but how we spoil this thing, that's the real fact. Again, security facility staff, building occupants not trained, that we all know it, regular mock drills. So how do we make this 15 people to 150 people? लोग तो कमेटी का 15 लोग भी नीचे नहीं आते. And that is why we have seen. So I was there with one of the
program with FSA at Washi. I was sorry to hear from the fire officer. वो बोले शिरके साहब हमारे यहाँ पर हम लोग जब अपना गाड़ी लेके जाते हैं फायर सर्विस वीक में उस बड़ा बड़े सोसाइटीज में तो हम लोग के सामने कम लोग रहते हैं और सर स्विमिंग पूल में ज़्यादा रहते हैं. दैट द फायर ऑफिसर वाशी फायर सो बैड. बट हाउ डू यू मेक दिस फिगर? ये 15 को 125 कैसे 150 कैसे करना है? आई विल टेल यू बिकॉज वी हैव डन दैट. वो लास्ट में आएगा. अगेन नो प्रोविजन टू इवैक्यूएट फिजिकली चैलेंज बेड रिडन पीपल. ये जो बेड रिडन है इनको कैसे निकालना है किसी को उनको लोगों को नॉलेज नहीं. लिटिल बिट थिंग्स व्हाट एवरी सोसाइटी शुड हैव आर द पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स. क्योंकि लोग इनहेलेशन हो गया तो इमीडिएटली दैट इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क. स्मोक मास्क, स्ट्रेचर, एईडीज हार्ट अटैक के लिए सबसे अच्छा चीज है. अमेजिंग थिंग. कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं, कुछ नहीं. एनीबॉडी गेट्स कार्डियक अरेस्ट बिकॉज स्मोक इनहेलेशन. ऑल यू हैव टू डू इट एंड प्रेस अ बटन. एवरीथिंग एल्स द मशीन डज इट. सिंपल चीज है बट नोबडी ट्राइज टू कीप. सो वी हैव ट्रॉलीज. तो आप देखिए डीमार्ट से सामान लेके आ जाती है और उसको उठाने में तकलीफ होता है. दैट्स व्हाई दे हैव द ट्रॉलीज. लेकिन पिताजी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको शिफ्ट करने के स्ट्रेचर नहीं हमारे पास. सो यूर नॉट अबाउट द मनी पार्ट, इट्स समथिंग एल्स. अगेन द एलपीजी सिलेंडर व्हाट वी हैव इज अ वेरी डेंजरस बिकॉज एनी फायर विद दैट एलपीजी व्हेन इट गेट हीटेड अप द होल सिचुएशन इज गोइंग टू गो आउट ऑफ हैंड. फायर एक्सटिंग्विशर्स गेट एक्सप्लोडेड. इसी गोरेगांव एग्जीबिशन ग्राउंड में लास्ट टाइम कोरोना से पहले वो लड़के लोग जो कॉन्ट्रैक्टर का शिफ्ट कर रहे थे ऑक्सीजन अपना बॉटल्स CO2 का, एक उसके हाथ से CO2 का 4.5 किलो का बॉटल गिर गया. दोनों लड़कों का टांग नीचे से काटना पड़ा. Now the CO2 cylinder the day it explodes you are a dead man. DCP extinguisher we have seen people trying to push it और बाद में कैप निकल जाता है सीधा मुंह को लेके निकल जाता है. So extinguisher if you don't maintain यही लाइफ बचाने वाला चीज आपका लाइफ को खा जाए. Especially your CO2 and plunger tank. And why do we see that deadly? We don't have to tell you. So this is anything with this, the situation is going to go out of hand. Terrace locked door है तो क्या करना है? What is the answer? So we have to put those duplicate key in a glass box so that you can break and take it. नीचे security के पास नहीं, ऊपर वहाँ पर होना चाहिए. Again we put these grills left and right. तो चोर से तो बच गया लेकिन जिस दिन फायर हो गया ना, this same grill is going to become our death trap. So the answer is ideally make it openable type. फायर ब्रिगेड का गाड़ी 16 माले तक आपको निकाल सकता है लेकिन वहां पर वेल्डिंग कटिंग करके निकालने के लिए उनके पास नहीं है. जिसका खुला है बाहर आएगा. So make it openable type. That is what is the whole answer. Again, Marol we had this incident again, same thing. So encroachment refuge areas, misuse of refuge areas for carrying out renovation. So renovation उनका हो रहा है लेकिन सामान सब वहां पर डंप कर रहे हैं. Balconies your last refuge area. संदीप साहब will agree that कहीं पर भी आप फंस गए तो लास्ट रेफ्यूज इज योर बैल्कनी. लेकिन हम लोग ने उसको भी अंदर लेके रख दिया. देन वी हैव नो ऑप्शन. डबल पार्किंग ऑन द अप्रोच रोड एंड इंटरनल रोड. कार्स आर पार्क्ड इन कंपल्सरी ओपन स्पेसेस. वी डोंट हैव टू टेल यू दैट. मंत्रालय दैट सेम थिंग हैपेंड. ऑल कार्स वर पार्क्ड अंदर. फायर ब्रिगेड गाड़ी अंदर आई नहीं और कोई भी लोग मुझे बता रहे थे कि गाड़ी को हाथ नहीं लगे बिकॉज देयर ऑल मिनिस्टर्स कार्स नोबडी वाज रेडी टू टच देम. फाइनली पृथ्वीराज चौहान हैज टू कम एंड टेल कि भैया मैं खड़ा हूं, तोड़ो इसका कांच और उसको मारो धक्का और निकालो. No, he had to come down to do that thing. And again, wooden decorative panels, what we have in the flats, this is the condition what we have. तो शाम को आप किसी भी बिल्डिंग में जाओ तो वहां पर सबका गाड़ियां आ जाते हैं तो अप्रोच रोड ही बंद हो जाता है कि एम्बुलेंस भी आ नहीं सकता. फायर ब्रिगेड तो आप क्या करेंगे? फाइनली नाउ दे हैव टू गो फॉर मोटर बाइक. अगेन इंटरनल रोड, आप बिल्डिंग के अंदर आ जाओ तो ये हालत है यहाँ पर. सो हाउ डू दे? Now these are the second fire fighting challenges. The earlier one was life safety. These are the fire fighting challenges. So again fire pumps comes on kept on all manual mode. सबसे बड़ा कारण and उसके लिए we all lose that all precious time. Again fire pumps are not tested on daily basis. NBC says they have to be tested on daily basis. सबसे critical चीज है, इसको रोज चेक करना चाहिए. लेकिन यहाँ पर वो AMC वाला जब महीने में एक बार आएगा तभी जाके टेस्ट होता है. Horrible part. The occupants have to, their person whosoever is there, he has to take it daily on 10-minute basis. Standby pumps are not provided. Pump room is full compartmented. Now your heart, fire fighting में आपका जो heart है वो है आपका pump room. अच्छा. And what is the respect we give? The whole pump room का दरवाजा खुला है ऊपर से, it's not compartmented. So anything happen in that basement, one car में आग लग गया, your pump room will not be in a usable condition. No telephone in the pump room where you can talk, no smoke extraction system and domestic pumps, water treatment plants, सभी कुछ उसी में डाल के रखा हुआ है. Whereas the fire pump room should not have any other utilities ideally, but हम लोग सब उसमें डाल देते हैं. In short, the respect what the pump room deserve it doesn't get. बुरा हालत.
Submersible fire pumps are put. Most of the old buildings you will find it. We all know it why submersible pumps are not allowed in firefighting, because they are highly unreliable. But we have seen in old buildings we have that. Fire brigade inlets, again they are never tested. The most critical thing, जब आपका सब कुछ फेल हो जाएगा और ये टैंक का आपका राइजर इनलेट है वही आपको बचाएगा. These are never been tested. And the day you require the wall खुलता नहीं है, सब अंदर जैम है. Right? So these are the one things. Critical walls are not marked for easy identification. कौन सा वॉल है, आइसोलेटिंग हाइड्रेंट का है, स्प्रिंकलर का है, कुछ मार्किंग नहीं है. जिसको पूछो क्या है, बोला सर मैं अभी आया, मुझे 1 महीना ही हो गया. So that is not the way we have to go forward. So हर चीज़ का मार्किंग होना चाहिए. What we have seen in the warship is, I'll tell you, and you should get a time to see a warship. हर एक केबल, हर एक ओपनिंग, हर दरवाजे के ऊपर लिखा रहता है ये दरवाजा कहाँ जाएगा. Nobody has to ask. Everything is marked. क्योंकि बीच समुद्र में लड़ाई में आपको कोई बताने के लिए आएगा नहीं. And everything, कुछ डैमेज भी होगा तो everything should be get. The inventory management, the marking, you should see a warship. और यहाँ पर कुछ पता नहीं होता अंदर जाके कहाँ जाने वाला क्या नहीं. All the marking. So critical marking should be in self glow, but every door, every opening should have a marking. Critical walls are not marked. So one Avigna we have seen that the occupant itself has switched off that sprinkler wall. भाई साहब ने अपनी तरह से वॉल बन के रखा हुआ है. रिनोवेशन जब हो रहा है तब आपको स्प्रिंकलर का सही जरूरत है, क्यों फायर हो गया तो, बट बोलते नहीं वो टूट गया तो मेरा पूरा फर्नीचर गीला हो जाएगा. सो द ऑक्यूपेंट हैज स्विच्ड ऑफ दिस वॉल. Sprinklers are located directly in front of the fireman lift. Now this what's a Beaumont has happened, where the sprinkler which was located directly in front of the fire lift, sprinkler got operated. Sprinkler operated हुआ क्या, सीधा पानी घुस गया फायर लिफ्ट में. फायर लिफ्ट में पानी घुस गया तो फायर लिफ्ट was non operational. So all the fire brigade people had to go 33 floors. अभी उनको पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा तो क्या फायर फाइटिंग करें मुझे बताओ. 15 मिनट तो ऐसे लेटे हुए थे. And this is where what we are happening. So sprinklers are located directly in front of lift. जिस दिन sprinkler operate हुआ वो fire lift किसी काम का है नहीं. Okay, so this gets the LEED certified. ये लोगों को जो बिल्डिंग को they have taken the green certification very to the heart. बोला पूरा बिल्डिंग को ग्रीन कर, लेकिन इसको बख्श दे. भाई साहब ने इसको भी पूरा ग्रीन येलो कर दिया. Right, so this gets the award. Sandeep साहब has more better photographs. I know he keeps collecting. उसको बना दिया सर IGBC नहीं, हमने दे दिया सर्टिफिकेट. ओके, अगेन सो वाटर कर्टन सिस्टम्स इन द बेसमेंट्स आर अगेन मोस्ट क्रिटिकल चीज, क्योंकि कंपार्टमेंटेशन कैसे होगा तो उसके लिए वाटर कर्टन सिस्टम दिया है, लेकिन वही हमारा बंद पड़ा हुआ. सो दैट इज यू हैव फायर, देयर इज नथिंग टू स्टॉप फ्रॉम दिस बेसमेंट टू दैट बेसमेंट. अगेन एयर रिलीज वॉल्स प्रोवाइडेड ऑन प्रेशर वेसल्स, जहां पर देना चाहिए प्रेशर रिलीज वॉल. मोस्ट कॉमन मिस्टेक वी गिव द एयर रिलीज वॉल, जबकि वो देना चाहिए टेरेस पे. Again, 3 or 4 सोसाइटीज wherever they are combined together, बिल्डर ने एक ही पंप रूम दिया है, सोसाइटी अलग फॉर्म हो गए, अभी वहां पर कुछ लीकेज है तो वन सोसाइटी से मेरा काम नहीं है, आपको जो करना है करो ना. हाउ कैन दिस सोसाइटी डू इट? 4 सोसाइटीज, बिल्डर ने भी एक ही दे दिया, बट ये दोनों, एक बोलता मैं पैसा नहीं पे करेगा, साहब आपको जो करना है करो. सो एक ही के ऊपर लोड आया था. सो somebody who really wants to do it, he cannot do that. Splinter detectors which are ideally provided inside those high-rise buildings, उसको फॉल सीलिंग के अंदर में डाल देते हैं या फिर उसको पूरा कट कर देते हैं. Again, renovation sprinklers are kept close. Electrical main cables, we have seen in one of the societies, वहाँ पर staircase के अंदर में इलेक्ट्रिक शाफ्ट जा रहा था और उसमें आग लग गया. When they found out, they found this whole thing. Builder साहब ने हमारा वो पूरा मेन इलेक्ट्रिक केबल को 4-5 जगह पे ज्वाइन किया था, उसको कंडक्ट से ढक दिया, किसी को पता ही नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है. But when they opened it, they found the whole main cable was joined at 5 places. Right. Thermocol being used for expansion joint. ये MGM फायर जो US में हुआ था, one of the major cause was the expansion joint, जिसको फिल करने के लिए you have to ideally put a fire retardant material. हम लोग उसको थर्मोकॉल का शीट डाल देते हैं और थर्मोकॉल इज ऑल हाईली कंबस्टिबल, फिर वो 2 इंच का गैप होता है और उसी से पूरा फायर स्प्रेड हुआ. इन दिस बिल्डिंग MGM होटल फायर, वेरी फेमस फायर, द फायर स्प्रेड थ्रू द सेम एक्सपेंशन जॉइंट. एक्सेल फ्लो फैंस विच आर प्रोवाइडेड फॉर स्मोक वेंटिलेशन बट दे आर नॉट कंपार्टमेंटेड. सो उसके सामने जो गाड़ी खड़ा है, अगर उसमें आग लग गया है तो ये सीधा फैन मेल्ट हो जाएगा, फिर उसमें कोई काम नहीं है. सो आइडली दिस इज द वन थिंग वी हैव फाउंड मेजर. अगेन नो हीट टाइप एंड प्रोब टाइप डिटेक्टर्स बीन गिवन इनसाइड द DG. नो DG आपका जो सबसे बैकअप सिस्टम है, कल अगर उसमें कुछ फायर हो गया, यू विल नॉट इवन कम टू नो until unless you have a flame detector, because the fuel will not emit any smoke, and you have a heat type probe detector जो 84 डिग्री के ऊपर ही काम करता है, तो पता चलेगा आपके डीजे में कुछ प्रॉब्लम हुआ है. Double headed hydrant points we have, but again they have this 90 degree turn. I'll show this photograph here. So we have this system. अभी इसमें से कैसे पानी बाहर आएगा, और गलती से कपलिंग अगर निकल गया तो फायरमैन का तो पूरा is going to get severely injured. उसका भी आंसर है. What is the way out?
right? So electrical duct door kept open, Sachinam building, what sir was telling you, because of that they had this reverse stack effect. ऊपर से हवा आके जो आग को पूरा 19 फ्लोर से took almost to the reverse stack effect. So why it is we have to keep those doors open, or we have to keep the doors closed. Sprinklers not inside the staircase, the ground and terrace level. I did this NFPA training और I was zapped क्योंकि वो US से जो ट्रेनर आया था वो बता रहा साहब आपके इधर भी ग्राउंड फ्लोर पे सब सामान रखते हैं और टेरेस में रखते हैं, और US में भी वही होता है. बिकॉज जब टेम्पो अनलोड होता है और उसमें से सब जो पेंट और सब मटेरियल निकलता है पहले कहाँ डंप करते हैं, पहले स्टेयरकेस में. फिर वो माथाड़ी कामगार उठा के 2 दिन में लेके जाएगा. बट फॉर द 2 days विथ ऑल द पेंट थिनर एंड ऑल द वुड योर स्टेयरकेस बिकम्स लाइक अ मिनी पेट्रोल पंप. ये US में भी होता है. तो बोला साहब हमने क्या किया है, they have done a very simple way out. So they have now put sprinklers inside the staircase only at ground level and terrace level, not anywhere else. क्योंकि ये 2 जगह पूरा डंपिंग ग्राउंड बन जाता है. एक्सीलेंट. बोलता साहब US में भी होता है, we have all the systems, बट यहाँ पर होता है साहब सामान ले गए तो रखेगा कहाँ, वो रखेगा ही ग्राउंड फ्लोर पे, और बाकी छुपाने के लिए कहाँ रखेगा, टेरेस पे. एक्सीलेंट आइडिया सर. राइट. Vertical and combustible aluminum claddings. Now we have seen this all claddings which are going, and fire brigade has been always telling अगर आपको लगाना है तो आप उसको हॉरिजॉन्टली लगाओ, वर्टिकली मत लगाओ, बिकॉज दैट क्लैडिंग इज कंबस्टिबल. इसमें नॉन कंबस्टिबल भी क्लैडिंग आता है. अंदर जो PVC है दैट ऑल्सो कम्स इन नॉन कंबस्टिबल एंड द चार्जेस आर नॉट वेरी हाई. दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं, बट पीपल इल अवेयरनेस वी जस्ट पुट दिस क्लैडिंग लेफ्ट एंड राइट. Again, hot work being carried out without supervision. So any hot work which happens in a building, वो टाका 7वें माले पे मार रहा है लेकिन उसका स्प्रिंटर सभी के डक्ट में गिर रहा है. Very dangerous thing. So ये hot work, what I was there as a property manager long time back in one of the buildings, I made this stop, और हमने उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे एक पार्किंग एरिया को हमने क्लियर करके दिया था. बोला आपको जो भी टाका मारना है, रंदा मारना है, जो भी काम करना है, ये एरिया दिया. लाइट, फैन सब कुछ दिया, पावर प्लग सब दिया है. So what we have done is the risk from the 18th floor we are suddenly brought to the ground floor. So एक जगह दे दो ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि काम तो उसको करना है, बट वो 18 माले पे टाका मारेगा सर पूरा बिल्डिंग खतरे में आ जाएगा. बोला जो करना है इधर करो, ऊपर जाके सिर्फ ड्रिल करना है और खिल्ला ठोकना है. नो वेल्डिंग वर्क ऑन. मीटर रूम्स का हालत वी डोंट हैव टू टेल यू, सोसाइटीज सच अ हॉरिबल पार्ट. Again, now here is the evacuation emergency. So window grills, like we have said, pressurization systems and lift wells, it's a big failure in India. We know it. इसको मेंटेन करने में कितना मशक्कत करना पड़ता है, बट पीपल विद दैट सो मच बजट नहीं है, ये नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है. PS speakers we have already covered. Re-entry provision. Now this is what happens in foreign country, कि आपके यहाँ पर इंडिया में वो है नहीं कि री-एंट्री का प्रोविजन होना चाहिए. आप स्टेयरकेस से नीचे जा रहे हो, पता चला वहाँ पर धुआं है. Now again you have to come back. How will you come back? यहाँ पर तो पैनिक बार is only one way. You can't even come. ऊपर terrace is locked. So every 4th floor ideally there has to be re-entry provision. जहाँ से अगर लोग फंस गए हैं, कल सी फायर नहीं, कल टेरिस अटैक भी हो गया, कुछ हो गया, एंड देन सडनली यू नो यू हैव टू कम बैक. सो यू कैन कम बैक ऑन द एवरी 4th floor एंड यू कैन गो टू अदर स्टेयरकेस. सो ये री एंट्री का प्रोविजन होना चाहिए. अगेन वी हैव सीन दिस पार्टी इनसाइड वन ऑफ द बिल्डिंग्स वेयर आई वाज देयर. वन ऑफ द टॉप बैंकर्स जो आजकल न्यूज में आ रहे हैं, तो भाई साहब के घर में पार्टी होता था लेकिन भजिया वहां पर तला जाता था, जिलेबी उनका स्टेयरकेस के ऊपर में. सो पार्टी इनसाइड एंड वी डोंट हैव टू टेल व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. बेसमेंट लिफ्ट लॉबी नॉट कंपार्टमेंटेड. इलेक्ट्रिकल पैनल्स वी हैव सीन स्टेयरकेस के अंदर में लगा हुआ है, टेरेस में लगा हुआ है. उसी पैनल में अगर आग लग गया तो पूरा स्टेयरकेस में वैसी धुआं हो जाएगा. स्टेयरकेस नंबरिंग्स नॉट डन. फ्लोर नंबरिंग्स, रेफ्यूज एरिया लोकेशन इनसाइड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अनाउंसमेंट्स आर मेड व्हेन द हूटर इज बजिंग. हूटर पूरा जोर से बज रहा है और उसी में अनाउंसमेंट हो रहा है, कैसे सुनाई देगा? सो आइडियली अनाउंसमेंट शुड ओनली बी मेड व्हेन योर हूटर्स हैव बीन साइलेंस्ड. हूटर को पहले साइलेंस करना है, उसके बाद ही करना है. But we try to do both the things and it never happens there. Now here, these are some of the innovative ways जो मुझे समझ में आया. So one is occupants to attend this mock drills. One, I have seen wherever this program has gone to a level, उस सोसाइटी में लेडीज इन्वॉल्व हो गए. जहाँ पर लेडीज इन्वॉल्व हो गया, इनको अगर थोड़ा सा समझ में आ गया, एंड आई टेल यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि घर में आपका भी बीवी के आगे चलता नहीं, मेरा भी नहीं चलता है. So एक बार एक औरत को समझ में आ गया कि अगर ये होना चाहिए, I've seen in buildings wherever women have come forward, it has gone to a different level. Right. Again sir, we have to celebrate this mock drills. आप suddenly एक संडे करोगे ना, कोई नहीं आएगा, 15 लोग भी नहीं आएंगे. And I have seen this happening in Oberoi Springs. Last time we have done it, Ghosh Saab was there. Parab Saab was supposed to come, but for some reason Ghosh Saab came. They have seen how it was done. Absolute celebration. I'll show you those photographs.
दिस इज हाउ हैज टू बी। 250 लोग वहां पर आए थे, अमेजिंग। सो द बॉटम लाइन इज सर, वी हैव टू सेलिब्रेट दिस। सडनली वन संडे नोबडी इज गोइंग टू कम, तो उसका तैयारी एक हफ्ता पहले से ही करना चाहिए। सो वेर एवर वी डू वी गेट 150 पीपल, उसका एक हफ्ता पहले से। सो छोटे बच्चे बोला पोस्टर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, बड़े बच्चे लोग बोला वीडियो बनाओ सेफ्टी के ऊपर, बिकॉज दे एनीवेयर ऑन द मोबाइल। लेडीज के लिए कुछ अलग। पीपल शुड एक्चुअली वेट फॉर दैट संडे टू कम, ये संडे आएगा और मेरे को प्राइज मिलेगा। दैट इज हाउ इट हैड टू वी डू इट ऑन सडनली वन संडे। पीपल डोंट इवन नो आज मॉक ड्रिल है। एम्प्टी फायर टैंक्स, एंड दिस point was also mentioned earlier also, so we have to now put fire hydrant points on domestic land, क्योंकि domestic का पानी कभी खत्म नहीं होता है। so अगर domestic में डाल दो 4-4 माले पे, 5-5 माले पे, एटलीस्ट पानी तो मिलेगा, right? Untrained security staff again, so I have seen this, they have now come up with a hose holder, new age fire I have seen in one of the exhibition। तो वहाँ पर आपको मैन पावर की जरूरत नहीं, होज होल्डर में सिर्फ होज को लगा दो तो खुद ही काम करेगा, आपको कोई मैन पावर की जरूरत नहीं। now which is the main, स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे, दे हैव होज व्हिच हैव कम अप विद स्प्रिंकलर्स। सो अगर आपका बेसमेंट में फायर हो गया, होज को लेआउट किया, उसमें से स्प्रिंकलर्स का पूरा नोजल से पानी निकलेगा। स्मॉल स्मॉल थिंग्स, सो वेरी इनोवेटिव थिंग्स हैव नाउ स्टार्टेड कमिंग, वी शुड यूज दैट। मटेरियल कैप इनसाइड स्टेयरकेस, वी हैव सेड होज 90 डिग्री, पीएस सिस्टम चेकिंग, हॉट वर्क वेल्डिंग, वी हैव सेड वी शुड डिस्करेज इट। अच्छा, वन थिंग आई सॉ, आई वाज देयर इन राजस्थान फॉर वन ऑफ द ऑडिट्स, और वहाँ पर आई वॉज देयर इन द ट्रांसफार्मर रूम, और ट्रांसफार्मर रूम में देखा एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। आई सेड दिस इज समथिंग, पत्थर और इतना बड़ा और अलग शेप में था। मैं पूछा ये क्या है, कहीं से गिरा है? बोला नहीं साहब, हमारे यहाँ पर वो वास्तु की जो हमारे जो एमडी है ना, वो वास्तु वाले को बहुत मानते हैं, और वास्तु वाले ने बोला ये पत्थर इधर होना चाहिए, ये दरवाजा यहाँ से खुलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। तो फिर मुझे समझ में आया कि हमारा तो कोई सुनता नहीं फायर कंसल्टेंट ऑडिटर्स का। सो द राइट वे इज टू वी शुड गेट दिस वास्तु एक्सपर्ट्स इनटू आवर एफएसआई फोल्ड, और इनको अगर हम लोग फायर सेफ्टी समझा देना सर, कोई एमडी मना नहीं कर सकता। थोड़ा उल्टा आइडिया, बट सर दिस इज हाउ, ये राजस्थान में आइडिया है, बिकॉज दे लिसन टू हिम। बस उनको कैसे भी करके वास्तु वालों को अपने फोल्ड में ले लेना सर, अपना आधा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बिकॉज इफ ही सेज हैज टू बी डन, इट विल बी डन। अगेन लाइक वी सेड, सेलिब्रेट, सो चिल्ड्रंस, दिस हैज टू बी कम फ्रॉम द बच्चों के साथ में होना चाहिए। सो समहाउ इफ यू कैन इन्वॉल्व देम एट द राइट स्टेज, बचपन से अगर उनको इन्वॉल्व किया, फायर स्टेशन में जो साहब को हमने पहले भी एक एडवाइस दिया था, या सॉरी एफएसआई की तरफ से, सो इफ यू कैन हैव दिस बर्थडे सेलिब्रेट एट फायर स्टेशन, वी कैन वर्क ऑन दैट मोडालिटीज, बट समहाउ इफ यू कैन इन्वॉल्व द चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स, तो उनके दिल में इसकी रिस्पेक्ट जो है पहले से ही आपका आ जाए। सो दिस इज व्हाट सम photographs of those events, you can see those balloons, it was absolutely celebrated. The local fire brigade was called and everybody was given prizes. जो फायर स्टेशन के 16 लोग आए थे, सबको गिफ्ट दिया गया सोसाइटी की तरफ से। द लोकल कॉर्पोरेटर आ गया था, उनको बात से दे इन्वॉल्व सो मेनी पीपल, इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। नहीं तो 15 लोग ही आएंगे सर, 150 करना है, इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड लाइक एन इवेंट। सो मॉक ड्रिल्स व्हाटएवर वी हैव प्रैक्टिकली, देखिए पूरा भीड़ बैठा हो, एवरीबडी कम्स, राइट? थोड़ा खाना पीना भी रखना पड़ेगा, खर्चा करो। वो 1000 कैंडल जलाने मरने के बाद में सर, इट इज बेटर वी स्पेंड मनी राइट अवे, राइट? तो स्पेंड मनी, दे हैव मनी, खर्चा करो सर, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन लोधा व्हेन दे हैव डन। तो आजकल लोगों को सेल्फी का बड़ा शौक है, तो डालो सर सेल्फी का स्टैंड डालो, लेट देम पीपल। आई हैव बीन इवैक्यूएटेड सेफली, सो नाइस आइडिया, एक्सीलेंट, पीपल कम एंड टेक दोस सेल्फीज, अमेजिंग थिंग, राइट? सर ये सोसाइटी का मुझे पूछना मत, ये मैं देखा तो हैरान हो गया था, क्योंकि ये जो सोसाइटी में पूछा ये क्या चीज़ है, तो मैंने भी आज तक देखा नहीं। तो पता चला है ये होली के टाइम पे लोगों को रेन डांस करने के लिए शावर बनाया हुआ है। तो साहब इनके पास में शावर के लिए जगह है, लेकिन उस स्प्रिंकलर लगाने के लिए इनके पास पैसे। आई वाज ज़ैप में, बोला क्या, यू कैन सी द क्लोजअप, दिस इज मेड फॉर दैट होली रेन डांस, साल में एक बार आएगा, उसके लिए बना के रखा, लेकिन स्प्रिंकलर के पास इनके पास बजट नहीं। आई डोंट हैव टू टेल यू दिस, दिस गर्ल हैज सेव्ड 15 पीपल्स लाइफ। जिस बिल्डिंग में 5 लोग मर गए, उसी बिल्डिंग में 15 लोग बच गए थे, बिकॉज दिस गर्ल during her school where she has been taught what is to be done, what is not to be done, it all came handy. So importance of training, what Sandeep Saab has been emphasizing, Paras Saab has been telling, is amazing. Sir, again, why women have to come at the front? We have seen is 66 people on an average die, and out of the 66, 62 are women. क्योंकि घर में हम लोग रहते नहीं, जब फायर हो गया हमारी बीवी, बहन और माँ वही रहती, तो उनको मालूम होना ही चाहिए व्हाई लेडीज हैव टू कम एट द फ्रंट, क्योंकि यू आर एट द मोस्ट डेंजर, राइट? करोडेड एक्सटिंग्विशर्स, ऑल दे गोइंग टू एक्सप्लोड। अगर ये नीचे से फटा,
दिस गोइंग टू वर्क गो लाइक अ रॉकेट, ये ऊपर से फटा, सो corroded extinguishers gone. Like with senior citizens, how do you get this bedridden people down? So evacuation chairs. So this is all the need of the hour. So हम लोग बताया कि वहाँ पर ट्रॉली है हमारे पास में डीमार्ट का सामान लेके जाने के लिए, लेकिन बूढ़े पिताजी को नीचे लेके आने के बाद हमारे पास में चेयर नहीं. This is the Sachinim height condition what we seen. See the thick smoke, and this is one of the biggest killer, right? What we have been always emphasizing, 80% of cause are always because of this. And what is the way out? So जानलेवा परिस्थितियों में प्रार्थना और प्रयास दोनों जरूरी है. I've seen in foreign countries they also put this cross outside their door, but when you go inside, उनके घर के अंदर मिलेगा किचन का फायर का ब्लैंकेट, और जहाँ उनका गाड़ी पार्क किया वहाँ मिलेगा फायर एक्सटिंग्विशर. भगवान पे श्रद्धा उनका भी है, but they don't only believe on prayers, they also believe in preparation. Whereas in Indian houses, you'll only find Ganpati outside and nothing inside. तो कल कुछ हो गया तो भगवान बोलेगा सब कुछ मैं ही करूं, तो बाबा तुम ऊपर ही आ जाओ. Right, so don't outsource the safety and security of you and your family to anybody else. Technology आ गया सर, लेकिन हमारे में अभी अक्ल आया नहीं. So the biggest challenge from the Indian point of view is not the money. पैसा आ गया, the biggest challenge is the mindset. हमको लगता ही नहीं कि हमारे घर में आग लग सकता है, हमारी बिल्डिंग में आग लग सकता है. Then you can't do anything. जिस दिन हमको लगा ये हमारे साथ भी हो सकता है, everything is there. But if you think it cannot happen, then no one can come and explain. So that's it from my side, sir. Thank you so much.